देते तो फिर हमारा रेस्ट पार्ट जो है ना वो बंद हो जाता है, दैट्स व्हाई वो मजा नहीं आ रहा है ना, फिर हम किसी को लॉग इन नहीं कर सकते, फिर वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, कोई चीज ट्रायल है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, यस, फ्रॉम व्हिच क्वेश्चन नंबर वी हैव टू स्टार्ट? कहाँ तक किया था हम लोगों ने? से समथिंग ABCD, जल्दी से कुछ बोलो। वेरी गुड मॉर्निंग, यस एनीवन प्लीज टेल ना, कहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों को? वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11B, हमने पढ़ाया था ना, एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वी हैव डन द फर्स्ट क्वेश्चन और नॉट? Yes, sir, we have done. So we have to start from question number 2. Okay. Okay, so let's start with question number 2. So we have to calculate amount and compound interest. So I hope That's the thing with the phone that costs. yes. So now what is the principal is given to you, that is 10,000. Okay. Time will be over 2 years and rate will be over 11% per annum compounded annually. So this is your question. Everything is clear to all of you? Okay. So now principal is given, time is given, and rate is given, compound annually दिया हुआ है, so we have to calculate first amount interest, amount क्या amount calculate करना है, so what will be the formula? जल्दी से बताइए, 1 plus 1 plus R upon 100 power n. So this will be your 10,000 1 plus 11 upon 100 power 2. Okay. So now 10,000, when you take the LCM, it becomes a 111 upon 100 power 2. So now we can write so 111 into 111 कर लीजिए, so 111 into 111 1 2 3 2 1. So that is equal to 1 2 3 2 1. Is that clear? So this is your amount 12,321. So compound interest is equal to amount minus principal. So 12,321 minus 10,000. So that is equal to 2,320. Is that clear? Any problem to anyone? Sir, tell 5. Yes. Chaliye 5 पे जाते हैं. 3 4 as usual it is same, so you can do by yourself only. ठीक है. जैसे रेट आपका 12.5% दिया हुआ है, so you can write 25/2. So 25/2 रखेंगे, नीचे 2 आ जाएगा आपका. So एक को सॉल्व कर देते हैं ना, 4 सॉल्व कर देते हैं, फिर हम फिर बताते हैं. ठीक है, 4 सॉल्व करते हैं फिर.
So in fourth part, it is given that 10240. 10240. Okay. For 3 years, the time will be your 3 years. Rate of interest 12.1 by 2% per annum compounded annually. I think so. Yes. So now we can write it as so we can say 25/2%. Is that clear? So what will be our formula? So 1 plus P 1 plus R upon 100 power n. So we can write it as 240 1 plus 25 25/2 into कर देंगे यहाँ पे 100. Is that clear? ये करना आप. Is that clear? So आपको क्या करना है? 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. Now 25 4 का 100 होता है. So we can write 1240 1 plus 1/4 to the 8 power 3. So we can write LCM लोग कितना जाएगा? 8. Then we can multiply 8 plus 1 9. So 3 times 9/8 into 9/8. So now 8 की टेबल से कट करिए. ठीक है. So 8 1 का 8 22 हो जाएगा. 8 2 का 16. So 6 is left. Okay. 8 8 का 64. 0 value. So now cancel by one more 8. 3 और 8 से cancel करते हैं क्या जाएगा? 8 1 का 8. कितना जाएगा? 448. 8 6 का 48. 0. फिर एक और कट करोगे 8 2 का 60. So what is left? 20 into 9 into 9 into 9. 9 9 is 81. 81 9 is 9 into 9 9 into 4 20 into 7 2 9. So 0 2 9 is 18. 1 carry. 2 is 4 1 5. 2 7 is. So now your interest will be 14,580. So now your compound interest is equals to amount minus principal. So 14,850 minus 1240. So 0 minus 0, 5 minus 4 1, 8 minus 2 6. Okay. कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? संतोष, आपका आंसर कुछ अजीबोगरीब आ रहा है. 4340. मैंने कैलकुलेशन सही है ना? आई थिंक मैंने कैलकुलेशन सही किया. हाँ, एक्सप्लेन अगेन मैं कर सकता हूँ. ठीक है. सो आई एम प्लीज जो लोगों को समझ में नहीं आया सो प्लीज लिसन हियर. वी आर हैविंग प्रिंसिपल 10240. टाइम विल बी 3 इयर्स. रेट हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में था 12.5. so we can write it as 25/2 no compounded annually. So there will be no change. Okay. So now what we have to do here, amount is equals to P plus 1 plus R upon 100 power n. यहाँ पे P हमारा 10240. रेट हमारा 25/2. तो 25 को ऐसे लिखेंगे 100 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. Then power will be your n का वैल्यू कितना है? कंपाउंडेड एनुअली है. रेट भी वो है. तो आपका क्या है? टाइम 3 इयर्स ही होगा. तो ये चलिए आपने यहाँ पे क्या 3 कर दिया. 25 से कट हो गया. कितना आ गया यहाँ पे 4. So 4 2 is 8. एलसीएम लोगे तो एलसीएम 8 आएगा. यहाँ पे देगा 18 का 8. 8 plus 1 9. 9 upon 8. अब हमने 8 से इसको कट किया तो हमारे पास क्या बचा 20. 9 into 9 81. 81 9 is 729. 729 to the 14580. माइनस कर देंगे आपको मिल जाएगा. In answer sheet for 4340 is coming. 4340. Answer sheet पीछे. Let's see. 11B.
हमने सब्ट्रैक्शन से नहीं किया 5 9 s तो 1 ही होता है, तो हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ 4 3 4 तो पॉसिबल नहीं है कि इनका एक तो आंसर सही है ना, यस द डिफरेंस विल बी रॉन्ग, वही तो हम भी सोच रहे हैं, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं ना बुक। यही आता है। So we are right. क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपने हमने कहा था कंफ्यूज हुआ था कि हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, ₹62500 प्रिंसिपल 62500 I think so, yeah, for time 2 years 6 months, okay, rate 12% per annum, compounded annually. Yeah? Okay. So now this is your question. अच्छा ऐसा था क्या? चेंज कर लीजिए क्या नहीं कर सकते? हाँ तो फिर चेक, ठीक है, ठीक उसको रेक्टिफाई कर देना, वही है ना, हम सोच ही रहे थे कुछ गड़बड़ को हुआ है क्या, आंसर मैच कर रहा है एक दूसरा कैसे गलत आ रहा है, ठीक है ना, 580850, ओके ठीक है कोई बात नहीं, उसको सही कर लेना, ओके। Raji Manohar purchased 2 handbags for 1500 each. He sold these bags, gaining 8% on one and losing 4% on the other. Find his gain or loss percent in the whole transaction. Okay, so इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है? राजी it is very easy. आपको हमने बताया इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, A और B 1500 that is cost price. Okay, in one he gain of 8%, यहाँ पे क्या प्लस 8% है, यहाँ पे माइनस 4% है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो दोनों का, सेलिंग प्राइस को हो जाएगा 108 अपॉन 100 इनटू 1500, यहाँ पे कितना मिलेगा सेलिंग प्राइस 96 अपॉन 100 इनटू 1500, तो 0 0 0 0 के टू गया है, 15 जा 120 0 अब बेटा इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐसे मानो 0 4 2 6 6 4 10 1 0 1 कैरी, और यहां से कितना होगा दोनों को ऐड करने पे 3000, यानी परचेसिंग आपको देखो उसको कितना मिल रहा है, सो ही गॉट दैट 60 रुपीस मोर, जितना उन्होंने खर्च किया था उससे 60 रुपीस ज्यादा मिला है, सो ऑब्वियसली इज हैविंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 60 अपॉन 3000 इनटू 100, तो दो दुनिया कट गए, एक दुनिया कट गया, 3 दूसरा कट गया, यानी 2% का प्रॉफिट हुआ उसे,
Is that clear, Prachi? पिछले वाले क्वेश्चन में उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है ना? वो क्या आपने लिख दिया था 14850 ना? हाँ, वो उसको सही कर लेना। तो एक्चुअल में क्या है, अमाउंट कितना है हम लोग को 14582 है, करेक्ट। और हमने लिखा है 10240 माइनस करेंगे 0 4 minus 8 minus 4. हेलो अखंड सर, अखंड सर, माय सेल्फ अखिलेश तिवारी। राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स क्या हुआ। माय सेल्फ अखिलेश तिवारी। प्लीज राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स, डोंट से एनीथिंग हियर, अदरवाइज इट डिस्टर्ब माय रिकॉर्डिंग। Write down in comment box what you want to say. Yes, my dear, please say here in comment box what you want to say. Santosh, what you want to ask, that just ask. So that answer will be correct ना? 4340 बुक का आंसर सही था, वो थोड़ा सा डिफरेंसेस थे वहां पे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नाउ टाइम विल बी व्हाट, when it is given 2 years 6 months, so we can write it as 2 6 month को हम कन्वर्ट करेंगे, that is 6/12, so that will be your becomes at 2.5. so now for 2.5 हमने आपको पहले कहा था I think Chris parents wants to talk to you. So Chris, what happened? Yes, of course, you can leave, no? So, what Avinash is right. Okay. So, if anyone wants to leave, they can go now. Yogi or just this will omit to your TV. So now how we are going to solve? Amount is equals to P plus 1 plus R upon 100. Power n होगा, लेकिन कब होगा when we are having that time in whole numbers. So now if that is not in whole number, then what we have to do? Let's see. चलिए हम देखते हैं। So 62500 1 plus 8 will give 12 upon 100 power 2 up for half. What we have to do now here? We have to multiply here also 1/2 into 12 upon 100. Is that clear? ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। Yes. So we have already told that we are having a fraction in time, so we can do like that only. So given that is 6. So now it becomes 62500. It will become 112 upon 100 into 112 upon 100. कैसे आएगा? ऐसे हम लोग ये 100 होगा, 100 plus 112. 2 times into it will become 6/100. So when you add this, then it becomes 106/100. चलिए आइए अब कैलकुलेशन किया जाए। So 2 zeros are cancel out. 25 into 25 6 होगा, 25 4 का आपका 100 होगा, 25 4 का आपका 100 होगा। Is that clear? ये एक कर गया। Now इसको लिखते हैं 4 से हमने कट किया, 4 2 का 8, ठीक है। अब कितना है वैल्यू 32, 4 8 का 32, तो ये भी कर दो। Now we are having 28 into 106. चलिए 28 into 106 जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए जल्दी से फटाक। यस, वेरी फास्ट। कौन बताएगा? अखिल, अखिल बोल रहा है। कोई कैलकुलेशन करो जल्दी से। शेखर, डू इट फास्ट, हमें करना पड़ेगा।
लगता है नहीं करना 83104 ओके थैंक यू करेक्ट है ना so now this is your amount so what will be your principal principal is the amount minus अब सही से बोलो 83104 minus करें 6250 it will be on 4 0 11 minus 5 6 2 0 8 minus 6 2 20,604 is that clear अभी तो सही है ना पिछला वाला आंसर भी सही था वो है ना तो थोड़ा माइनस हमने लेने की रेट क्या ले लिया था 580 के लिए 850 ले लिया ओके वही सोच रहे एक पार्ट आंसर सही है एक पार्ट गलत कैसा आया चलिए ठीक है नेक्स्ट तो ये समझ में है कि अगर आपका टाइम जैसा फ्रैक्शन में जाएगा देन व्हाट वी हैव टू डू होल नंबर के लिए अलग से करेंगे जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसके लिए हम लोग अलग से करेंगे फ्रैक्शन को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इज दैट क्लियर तो ये आ रहा है सुनाओ संतोष ये क्लियर हो गया फिफ्थ पार्ट चलिए आइए अब ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी है क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम सो यू कैन डू बाय योरसेल्फ 4 मंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/12 दैट इज 1/3 सो 1/3 कर दीजिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7 find the amount of rupees 8,000 for 2 years compounded annually and the rate being 9% per annum during the first year and 10% during the second year मैंने आपको पहले बोला था रेट चेंज होगा आप हर साल के लिए अलग-अलग कर चलिए ऐसे चलिए क्वेश्चन को समझते हैं व्हाट इज गिवन द प्रिंसिपल विल बी योर 8,000 दिस इज 8,000 टाइम विल बी योर 2 इयर्स चलिए 2 इयर्स कर दिया रेट विल बी योर 9% फॉर फर्स्ट ईयर अब देखिए यहां पे क्या है फॉर फर्स्ट ईयर इट इज 9% per annum and for second year it is how much 10% per annum compounded annually तो बात नहीं ऐसे केसेस में हम फॉर्मूला का यूज करते हैं 1 plus r1 upon 100 1 plus r2 upon very simple 8,000 1 plus 9 upon 100 1 plus LCM लिया 109 upon 100 110 upon 80 double किया So 9592 now interest good Vaishnavi साथी ने कर लिया very good okay so now you can feel it is very easy अगर आपका different rates दिया हुआ different years के लिए so we have to do multiply ना for different years ना अलग-अलग separate ऐसे करके आप कई साल का जितने साल का देखो फिर कर सकते हैं yes I am faster than Vaishnavi oh my god competition Vaishnavi next time very fast तैयार रहना so let's see so question number 8
Anand obtained a loan for rupees 125,000, 1,25,000 from Allahabad Bank for buying computers. Okay. The bank charges compound interest at 8% per annum compounded annually. What amount will have to pay after 3 years to clear the debt? यानी अब जो है आनंद ने क्या किया है, लोन लिया है कितना 1,25,000 का फॉर परचेस, ठीक है ना, दिस वन। और उसके बाद क्या किया है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 3 इयर्स के बाद उसको क्या करें, टाइम इज गिवन, कहानी के फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है ना, सब कुछ क्या कहानी के रूप में दिया। चलिए डालते हैं कितना देना पड़ेगा सचिन, वेरी फास्ट। 1,25,000 for 3 years, rate 8% per annum compounded। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स सी, एवरीवन रेडी? देखते हैं कौन फास्ट करने वाला है। चलिए, amount is equals to T1 plus R upon 100 power n, 1,25,000 1 plus 8 upon 100 power 3, 12500 108 upon 100 108 upon 100 108 upon, ठीक, बहुत इजी होता है। Is that clear? अरे आंसर क्या आएगा? Oh my God, मेरे बच्चे तो बहुत फास्ट हो गए। 25 5 जा 125, 25 4 जा 5 2 जा 2 से कट गया 54, तो सभी को कर देंगे 54 चलिए 54 into 54 into 54, क्या हो गया फिश? चलिए बताइए 54 into 54 into 54 कौन निकाला है फर्स्ट? Who is first now? मैंने Oh my God, ये मेरा कमेंट बॉक्स इतना ऊपर कैसे चला गया? Oh my God, ऊपर से देखना पड़ेगा कौन फर्स्ट निकाला था। सबसे पहले किसने भेजा? अविनाश ने। Oh my God, बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अविनाश, श्रेयांश, वैष्णवी, आर्यन, सचिन पटेल, बाप प्रकट, सब वेरी गुड, अच्छा है। लेकिन एक में गड़बड़ दिख रहा है, प्रकट में 646 आया हुआ है, बाकी सबका 464 आया हुआ है ना। प्रकट आपका आंसर देखिए 157,464 सभी लोगों को आया हुआ है 157,464। So that Anand has to pay after 3 years this much of amount. Okay. Avinash use the calculator. Oh my God. अच्छा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। And the first, and the first, and the first. Very good. So next question. समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? प्लीज ने कहा नो। प्लीज को समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ भी? अच्छा, प्लीज नॉट अंडरस्टैंड। Don't fight. Yes, again say don't fight. चलिए। Okay, now the next question. All are ready? सब लोग अपने अपने हॉट शीट पे रेडी हो जाएं। अगला सवाल बस ₹1 के लिए। 3 years ago, Biru purchased a buffalo from Surjit for ₹11,000. Buffalo आ गया है। Ready? All are ready. माइंडेड होते जा रहे हैं ना। चलिए ठीक है, सो बफेलो खरीदने के लिए सुरजीत आगे जा रहे हैं। 3 years ago, 3 साल पहले की बात है। तो सुरजीत ने जो है बफेलो कितने परचेस की ली है? 11,000। चलिए ठीक है,
यानी हमारा जो है पहले का प्राइस प्रिंसिपल हो गया। 3 इयर्स एगो की बात हो रही है, 3 साल बाद हमें बताना है कितना पैसा देना। रेट हाउ मच what payment will discharge 10% per annum, 10% per annum आपको बकाया का इंटरेस्ट देना है। Okay, so how much you are going to pay? Biru purchase this month. What payment will discharge is debt now? तो अभी कितना पैसा वो देगा? तो देते हैं ऐसी कितना देंगे भैया? बिरू भैया ये कैलकुलेट करते हैं बिरू भैया का अमाउंट 11,000 चलिए हम लोग फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली आपको लिख दीजिएगा 10/100 पावर 3 एक जीरो ये का करते हैं 11,000 how much it is 10 plus 11/10 11/10 11/10 1 2 3 1 2 3 11 into 11 into 11 into 11. Let's see who will do first. 1 3 3 11 1 11 then 33 34 3 33 कौन सा पूरा खाना कैसे बता? ओह माय गॉड, बाप रे बाप, ज्योति का आंसर भी आ गया। तो अच्छा बच्चे तो हमारे बहुत फास्ट हो गए, सही पीछे हो जा रहे हैं। पहले आंसर आ गया 14,641, सबको 1 रुपया मिलेगा। So this amount that Biru has, है ना, बीरू का वीक का कर्जा कितना हो चुका है 14,641। वेरी गुड। चलिए सो हॉट सीट पे सबको रेडी रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऑल आर रेडी? ओह माय गॉड, हैंग हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे तो मोबाइल हैंग हुआ करो उसको उठा के पटक दिया करो फिर चालू हो जाता है। ओके चलो लेट्स सी नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10। Subbulakshmi took a loan of rupees 18,000 from Surya Finance to purchase a TV set. पागल है तो टीवी भी कोई फाइनेंस में लेता है। If the company charges compound interest at 12% per annum during the first year and 12.5% per annum during the second year, how much will she have to pay after 2 years? Very simple question है, ठीक है। फोन टूट जाएगा तो फेविक्विक से जोड़ देंगे, फेविक्विक कंपनी बात नहीं जाएगी अगर हम यूज नहीं करेंगे तो फेविक्विक से कैसे जोड़ना है। फेविक्विक 5 रुपए का फेविक्विक आता है। अभी देखा ना हॉट सीट पे बैठ के सब लोग ले रहे, लेकिन रुपए से फेविक्विक खरीदेंगे सब लोग। बहुत अच्छी बात है, फेविक्विक खरीदना है, यहाँ जाके फिर फेविक्विक से पूरा फोन को जोड़ लेना। सब लोग यहाँ हॉट सीट पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सबके 1 रुपया मिल रहा है। Oh my God! अभी चेक मिलेगा सबको 1 रुपया। कौन बनेगा 1 रुपया तक हम लोग खेल रहे हैं ना, इसलिए। So Subbulakshmi took a loan of 18,000। चलिए Subbulakshmi को निकालते हैं। Subbulakshmi जी आप नहीं बता सकते हो ये जुगाड़। Okay, 12% per annum for 2 years, 12% per annum for first year, and R2 will be how much? 12.5% for second year. Okay. Subbulakshmi जी का ये हो गया। So amount will be Subbulakshmi जी आपको क्या पेमेंट करना है? 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100। चलिए आइए। So 1800, 1 plus 12 upon 100, and this will become 25 upon 2. So 1 plus 25 upon 200। समझ में आया होगा सभी को? 2 से 100 मल्टीप्लाई हो गया 18,000 into 112 upon 100, 125 upon 225 upon 1010 10 ओके। चलिए 2 10 हो गया, यहाँ पे कर देते 2 5 का 10 2 6 का 12, ठीक है ना। 10 से कट कर देंगे 5 से 5 2 10 5 4 20 5 5 से 25 तो आ जाएगा। यहाँ पे कट कर देते हैं। So we have to multiply 18 into 28 into 45। जल्दी से हॉट सीट पे आंसर आ जाना चाहिए। ओह माय गॉड, हॉट सीट पे आंसर आ भी गया।
22680 oh my god चलो बहुत साफ है 22680 सो सुबह जी आपका टीवी आपको इतने में पड़ेगा समझे आगे वाली 18,000 का टीवी का इतना एक्स्ट्रा देना पड़ा इससे अच्छा हार्ड कैश नहीं ले लेंगे इतना पैसा बचा लेंगे इज दैट क्लियर सभी को समझ में आया कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं नाउ यू कैन कैलकुलेट योर ओन इंटरेस्ट आप अपने घर में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ओके सो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मजा आ रहा है सभी को सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले हॉट शीट पे करते हैं नेहा जी से मिलते हैं नेहा जी आपने बोरोड किया है 24,000 from State Bank of India to buy a scooter 24,000 में स्कूटर आएगा ओके बहुत पहले की बात होगी if the rate of interest be 10% per annum compounded annually what payment will she have to make after 2 years 3 months अब देखिए वही वाला क्वेश्चन है फ्रैक्शन टाइम वाला है ना सर वॉइस इज वेरी लो सर तो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं वॉइस इतना लो क्यों आ रहा है अंकिता अपने माइक का वॉल्यूम बढ़ाओ चलिए आज हमारी जो है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया I think you all got your own IDs ना स्कूल ने आपको IDs प्रोवाइड की I think 6, 7, 8 को no चलिए ठीक है वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट योर स्कूल IDs 7th क्लास को कल दिया गया है अब मे बी आज 6 और 8 को भी मिल जाएगा then you have to log in by your own मतलब your own ID नहीं by school ID only फिर आप अपने दूसरे आईडी से अगर आपने एंटर किया तो अब ये आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू कम इन क्लास ओके सो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है सो लेट्स सी नेहा ने क्या बोरो किया है 24,000 में आपका नेहा जी ने जो है क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा नेहा जी का क्वेश्चन नंबर 11 So how much she borrowed 24,000 कितना पैसा उन्होंने लिया ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया हुआ है तो रेट में आपका 10% per annum compounded annually देखिए time will be over 2 years 3 months 2 years 3 months so we can write 2d by 12 is equal to 4 so 2 1 by 4 years ऐसा होना है सभी को now amount is equals to p1 plus r upon 100 for whole number and 1 plus जो भी आपका p by 2 into r का upon 100 ये यहाँ पे so we now we have to put 24,000 1 plus 10 upon 100 power 2 1 plus 1 by 4 into 10 upon 100 this one okay so we can write it as 0 0 कट जाएगा 24,000 into 110 upon 100 110 upon 100 into ये कितना 40 41 upon 40 चलिए इस दो यहाँ पे कर लेते हैं 8 2 3 0 यहाँ पे कर लेते हैं 24 into 11 into 11 into 41 upon 4 4 6 are 24 so 6 1 is 6 6 2 is चलिए सुनो मल्टीप्लाई सबने कर भी दिया ओह माय गॉड वेरी फास्ट
29766. चलिए भाई 29766. So now this is amount. This is your amount that's Neha had to pay. She have to pay after 2 years 3 months. ओके अच्छा वीडियो ब्लर होने लगा एक्चुअली टाइम हो गया ना चलिए फिर आगे क्वेश्चन हम लोग बात में करते हैं नेक्स्ट कल सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी Thank you, sir.